है सभी विदाई समारोह में स्वागत करते हुए उन दोनों को हार्दिक हार्दिक बधाई हो। डॉक्टर सभी इस कार्यक्रम की अध्यक्षा एवं चिकित्सा निरीक्षक साहिबान को विनीत करूंगा कि वो मंच पर आकर स्थान ग्रहण करेंगे। साथ ही सीएसएस अतुल सर एवं महेंद्र सर से विनीत है कि वो भी मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। इसके साथ ही आज की सम्मान देवी डॉक्टर अनुराधा मैडम से भी विनीत है कि वो मंच पर आकर स्थान ग्रहण करेंगी। धन्यवाद सभी का। जब कोई छुट्टी रहती थी तो मैं तो एकदम ऑब्वियसली चिल रहता था। सो माय मॉर्निंग्स वाज यूजुअली लाइक दैट वाज माय मॉम getting ready, combing her hair and putting her overcoat and putting a badge to get ready for a duty. तो मैं ये सोचता था यार क्या डिस्टर्बेंस है, मतलब मेरे को सोने का है और ये मॉम मतलब यहाँ पे लाइट ऑन कर रही है, स्लीप डिस्टर्ब कर रही है। But obviously after the years later I realized that it was actually her dedication to her service that what she was giving. And जितनी मैं obviously मैं पूरा अपना ज़िंदगी like I'm 23 and a half, तो पूरा ज़िंदगी obviously मैंने इधर जगजीवन में बिताया। So मैंने बहुत सारी speeches सुनी है from a lot of people जो भी doctors, sisters and brothers जो भी थे यहाँ पे, and सबने ये एक चीज़ mention की है कि this is not a job, this is a service. So that's what the difference was between what she was doing and what I was doing, because मैं देखो जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा था and मेरे को पता नहीं कि एक्चुअली सर्विस क्या है एग्जैक्टली। देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्थ इन व्हाट शी इज एक्चुअली डूइंग। हमारे तो आईटी में क्या ही है यार, मतलब 2 साल कंपनी में आते हैं फिर स्विच कर लेते हैं फॉर हायर पे, दैट्स इट। तो ये डिफरेंस था कि जो मॉम कर रही थी, बिकॉज इट वॉज अ डेडिकेशन टू हर सर्विस दैट व्हाट शी वॉज डूइंग विच वॉज वेरी डिफरेंट। So yes, and 30 plus years my mom has worked in the railways, and that's actually a huge feat for her. So yes, as पहले मैंने बोला था 2 साल में switch करते IT में, and she has dedicatedly worked 30 plus years in helping other people, bettering their lives वगैरह। यहाँ पे आपके भी बहुत सारे मॉम आपके कोलीग होंगे, शायद आपके साथ वर्क किए होंगे, एंड बट यहाँ पे जो आते हैं लोगों के लिए उनके लिए एक्चुअली वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस है, ताकि आप उनका हेल्थ जो है। आई एम ए रिटायर्ड नेवल ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन नेवी आफ्टर कंप्लीटिंग अबाउट 35 years of service. When I was in Bombay, she came to Bombay after completing her graduation. She actually bright student and hard worker during her college days, and you have obtained 2 degrees. One is BSc Zoology and the other is BSc Nursing. After completion of the nursing, she came to Bombay as per my advice, and I put her in one of the naval hospitals through my acquaintance for a short period for the experience purpose. After that, again in JJ Hospital, I got some acquaintance there. I also put her there for some brief period. After that, she had gone to Kerala because my father-in-law was very much interested in getting a government job in Kerala.
So while going, there was an advertisement in that time it was in the roadside. People were keeping forms for the various government jobs. So one day while I was going to my office, I saw an advertisement regarding railway recruitment. I bought one form for her and given to her. She filled up the form and went to Kerala. After a brief period, the railway had sent a memo for the interview, and she had come back to Bombay, attended the interview, and finally she got selected. During this period, I was accompanying her because she was new to Bombay. I was the only person who can help her during this period. So finally, in 1992, she was appointed as a staff nurse in JRX. I hope she has done a very good job in JRX because of her experience and the 2 degrees she has got from the Kerala University. I'm Dr. Tanay Dangote. Some of you might know me because I've worked here for a year almost during COVID and few months after COVID also. And my experience in JRH was amazing, but that is not what I'm here to talk about. But one thing in working here, I definitely understood that how hardworking the staff of JRH is and how dedicated they are to my mother and all the patients present here. And I would like to take this opportunity to share a few how grateful my working life was here, and in that मतलब उसको देख के मैं ये भी बोल सकता हूँ कि how good it was for mother also, how respected she was, because definitely whatever time spent here she और काम किया है भुसावल, इगतपुरी, कल्याण, बाइकला, and she's ended, not ending, let's say starting a new chapter of her life यहाँ से, and kind of skip ending this old chapter यहाँ पे JRH में. And JRH की staff, doctors have always been very helpful to her, and I'm very, very proud of my mother, of her long year of service, her medical profession, and it is a huge inspiration to me also, for which also one reason why I became a doctor. And आज जो दोनों बैठे हैं रिटायरमेंट के लिए, वो दोनों के साथ मैंने काम किया है. जो मेरी लाइफ की शुरुआत हुई थी वो आईसीयू से शुरुआत हुई थी, वे आई वर्क विद सविता मैडम. सविता मैडम के लिए एक ही मुझे बोलना है. एक दिन ऐसा था ड्यूटी का मेरा, उस दिन मैं खाली अकेला था, नो इंचार्ज वे देयर, नो सपोर्टिंग डॉक्टर्स वे देयर, और सविता मैडम थी. उस दिन 6 एडमिशन आए थे, एक डेथ हुआ था, एक डायबिटिक किडनी एसिडिस का पेशेंट था, और इतना काम था. मैडम सुबह 8 साढ़े 8 बजे आई और वो 2 बजे तक कंटिन्यूस मेरे ड्यूटी में मेरे साथ. हम दोनों ने भी खाना नहीं खाया, दोनों इतना भागते रहे, कंटिन्यूस भागते रहे. लेकिन मैं मैडम का इतना मानना चाहता हूँ कि उनका स्टैमिना कम नहीं हुआ. She was there with me throughout my duty. She also didn't have food, even me also didn't have food. So I wish that everyone has same stamina. Thank you मैडम for helping me on that duty. और उनका स्टैमिना हमेशा से अच्छा ही रहा है. अभी भी देखो, she is continuously smiling and she is energetic. Even doesn't look like she is retiring. So I wish all the best मैडम for your future life. और उसके बाद मैंने जैसे आईसीयू छोड़ा, I worked in OT where I met Anuradha madam. There I got a lot of support. She was caring, she was like helping, she treated me like son throughout my tenure. Whenever she was there, she treated me like son. She was always supporting. उनमें इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है कि she was good leader, good listener, good supporter. So उनके साथ काम करके भी मुझे बहुत मज़ा आया. So I wish her also all the best and go be healthy in future life. If you need any help, we are here to help you. All the best for your future life. Thank you. बहुत CSS रिस्पेक्टेड बहुत CSS सर, एनो मैडम और आज के सत्कार मूर्ति एकदम
beautiful girls, Dr. Savita madam and Sister Anuradha. सबको मेरा नमस्कार। आज JRS से ये दो स्टाफ रिटायर हो रहे हैं, लेकिन लगता ही नहीं कि वो रिटायर हो रहे करके, क्योंकि उन्होंने जॉब तो संभाला अच्छी तरह से, घर भी संभाला, लेकिन खुद का हेल्थ भी बहुत अच्छी तरह से संभाला। सविता मैम को तो मैं रोज बोलती थी, मैडम यू आर रियली 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 सो ब्यूटीफुल। और आज भी मैंने उनको बोला कि हर दिन आप नए लगते हो, कुछ तो स्पेशल रहता है। और वो खुद से प्यार कैसे करे ना, सविता मैम से सही में सीखना चाहिए, और हमारे अनुराधा सिस्टर से भी सीखना चाहिए। डॉक्टर सविता मैडम, उनका और मेरा रिलेशन JRS से चालू नहीं हुआ। मैडम का फर्स्ट पोस्टिंग इगतपुरी में था, तभी मैं मेरे मम्मी के साथ में रेलवे हॉस्पिटल में जाती थी कंसल्टिंग के लिए। तो मैडम के जब भी मैं वो मैडम का कंसल्टिंग ऐसा रहता था और सामने एक बेंच रहता था, और जब भी मैं उधर है ना वेटिंग के लिए बैठती थी ना, तो मैं हमेशा वो नाम पढ़ती थी। मेरा नाम पहले मुझे अच्छी तरह से अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से सविता मैम को मिली ना, मैं नाम मेरा अच्छा लगने लगा। और पर्पसफुली मम्मी के साथ में उनके साथ जाती थी, और वो हस्बैंड वाइफ में सर और मैडम दोनों भी उधर थे। और मेरे मम्मी को भी मिस हॉस्पिटल में जाना है तो सविता मैम को ही दिखाना है, क्योंकि आज भी इगतपुरी में अगर जाएंगे ना, सब किसी को भी पूछ लीजिए, डॉक्टर सविता मैडम एंड डॉक्टर महेंद्र गागोडे सर, सब लोग पहचानते हैं। वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सेवा दी, क्योंकि मैं खुद मेरे मम्मी के साथ में कितने बार उनके घर पे गई थी। 4 बजे 5 बजे कभी भी कुछ प्रॉब्लम आता था, हॉस्पिटल में गए तो बोलते थे कि नहीं पेशेंट को घर पे भेज दो करके। मैं सुधरी हूँ, बाजू में उनका क्वार्टर्स था, तो जाने के बाद हमें पानी भी मिलता था और नाश्ता भी पूछा जाता था। मीन्स ऐसा रिलेशन बहुत अच्छी तरह से उन्होंने रिलेशन मेंटेन किए हैं। और उसके बाद जब मैं वहाँ बेंच पे बैठती थी ना, तो नाम तो अच्छा लगने लगा था, लेकिन ऐसा लगता था कि अगर मैं भी डॉक्टर बनूँ तो, और मेरे लिए भी ऐसा चैम्बर हो तो। मिस ऐसा मैं सही में, मिस ऐसा मैं ब्लफ नहीं कर रही हूँ, मैं सही में ऐसा सोचती थी। और फिर मैं बोली भी उससे इंस्पायर होके वो लोग डॉक्टर तो नहीं बन सकी, लेकिन सिस्टर ज़रूर बन गई। क्योंकि इगतपुरी एक छोटा सा विलेज है, वहाँ पे इतना कुछ ये नहीं था, मिस अवेयरनेस नहीं था, या मैं भी एक छोटे फैमिली से आई हूँ। तो तभी मुझे मेरी फ्रेंड नहीं, मेरे भाई की फ्रेंड मिली थी, फिर उन्होंने नर्सिंग के बारे में बोला, फिर मैं नर्सिंग में आई। लेकिन वो रेलवे के नर्सेस वगैरह भी मुझे बहुत पसंद थे तभी भी, लेकिन एक सिस्टर थी बहुत जोर से इंजेक्शन लगाती, उससे मुझे बहुत गुस्सा था। फिर हमारी मुलाकात हो गई MIC में, जब मेरा पोस्टिंग MIC में था, और मुझे मालूम पड़ा कि डॉक्टर सविता मैडम का पोस्टिंग अभी JRS में हुआ है, और वो ICU इंचार्ज है। बहुत खुशी हुई मुझे कि उनके साथ मुझे काम करने को मिलने वाला था। और मुझे जितनी खुशी हुई, मैं घर जाके बोली कि मम्मी सविता मैडम है ना हमारे हॉस्पिटल में आए हैं, और है ना वो हम दोनों एक साथ में काम कर रहे थे। मेरे से ज़्यादा भी खुशी मेरे मम्मी को हुई। और एक दो बार मैडम से मिलने भी आए हो, क्योंकि मैडम ने सिर्फ हाथ लगाया कि पेशेंट अच्छा हो जाता था। एक उन पर इतना ज़्यादा फेथ है, जिस मेरी मम्मी उनकी इतने सालों से पेशेंट है, तो सही में उनके बारे में जितना भी बोले बहुत बहुत कम है। और जब मैंने ICU छोड़ा, एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो हार्ड वर्कर है, गुड उनकी फैमिली के लिए बहुत, और इतना सुंदर गाना गाते, इतना मधुर आवाज़ है। मैडम जाते जाते गाना जरूर होना चाहिए। तो तभी कभी भी प्रोग्राम रहता था और मैडम का गाना रहता था, तो हमेशा ऐसा इंट्रोडक्शन मिलता था, सुंदर सा चेहरा, रूप है सादा, किशन की नहीं सुबह जी की है वो राधा। और जब भी मैडम से मैं मिलती थी ना, एकदम अच्छा सा स्माइल, एकदम सुंदर सा स्माइल, एकदम छोटा सा एक बच्चा उनके अंदर है ना अभी भी जिंदा है, वो मुझे बहुत पसंद है। और है ना वही क्लाइमेट, मिस हमेशा खुश रहने वाला क्लाइमेट मुझे उनके फैमिली में मिला। अभी उन्होंने ना रिटायरमेंट का लंच रखा था, तो वो टाइम में उनका बेटा कार्तिक आया मेरे सामने। मैंने उनको अभी तक कभी भी देखा नहीं था, लेकिन सिर्फ वो सामने आया और मुझे बोला सिस्टर अनुराधा है क्या। तो उसके खुश मिशास बोलते हैं ना, वैसे उनके बेटे हैं। फैमिली भी उनकी बहुत अच्छी है, रिटायरमेंट लाइफ उनका बहुत अच्छी तरह से जाए, ऐसे में पूरे कैजुअलिटी स्टाफ की ओर से। और स्पेशली मेरे मिस्टर ने बोला है सविता मैडम को मेरे तरफ से शुभकामनाएं देना, क्योंकि वो भी उनके पेशेंट है और वो भी इगतपुरी से उनको जानते हैं। मिस
हमारी शादी नहीं हुई थी वो मेरा इन लॉज एंड मैं एक साथ में ही है, मिस्टर को बुलाया जाता है। मैंने भी उनको ऑफर दी थी, मैडम चलिएगा वहाँ बड़ा हॉस्पिटल डालेंगे, अभी भी आपको पेशेंट की कमी नहीं होगी। तो इतना बोल के मैं 2 शब्द खत्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। भूल पाओगे जो संग बिताए हैं, पल याद आएंगे, ना भूल पाओगे, ना भूल पाओगे। धन्यवाद। और मेरा एक्सपीरियंस तो डॉक्टर सविता के साथ बहुत लंबा है, जयपुर से है, आज से नहीं जानती मैं उनको। और अनुराधा सिस्टर का वर्किंग में तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि मेरा यहाँ पे करीबन 2 साल होने को आया। बट येस, जब भी कॉरिडोर में आते जाते किसी मीटिंग में, तो जैसे पहले भी बोला है, एक स्माइलिंग चेहरा वो हमेशा मुझे दिखता था, और दूर से हाय वही मेरा भी रहता था। तो आपको मैं आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और इसी तरह मुस्कुराती रहें। डॉक्टर सविता से सबसे पहले मुलाकात जयपुर में हुई जब ये ट्रांसफ़र होकर आई, तो वहाँ पे हमारा एक गैंग बन गया था 4-5 लेडी डॉक्टर्स का, और हमने बहुत एंजॉय किया है। मार्केट जाना, कॉन्फ्रेंसेस में जाना, और पूरे हम लोग 5-6 लोग साथ में ही जाते थे। और उसके बाद वो गैंग बड़ा होता गया विद सम्स। इसके अलावा सबसे खासियत उस समय जो मैंने इनके लिए नोट की, ये अकेली रहती थी, लेकिन इनका लंच कंप्लीट होता था। मे बी इसीलिए हेल्थ इन्होंने मेंटेन किया। तो मैं पूछती भी थी, तुम अकेली वो पूरा टिफिन बना के लाती, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद सब कुछ। तो और हम लोग साथ में ही खाते थे, क्योंकि मेरा घर अक्रॉस द रोड था, जस्ट हमारा ओपीडी और रोड के बाद मेरा घर। तो हम सब 5-6 डॉक्टर, मेरे घर में लंच टाइम में कोई होता नहीं था, बच्चे स्कूल, हस्बैंड ऑफिस में, तो हम सब वहीं खाते थे। सर्दियों के दिनों में धूप में खाते थे। आई थिंक शी नोज एवरी, वी हैव एन्जॉयड अ लॉट। फिर ये वहाँ से बॉम्बे आ गई, तो मैं इनके पीछे पीछे आ गई। तो और यहाँ पे जब मैंने JRH में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था, जब मैं वेस्टर्न रेलवे आई, तो 7 दिन यहाँ थी। तो मेरे पास और कोई जगह नहीं थी, बस इन्हीं का रूम था, क्योंकि सिर्फ इन्हीं को जानती थी। और फिर जब मैं स्टडी लीव पे गई, तो ये काफ़ी इंकरेजिंग थी शुरू से, और काफ़ी अप्रिशिएटिंग भी थी जिस तरह से मैं काम करती थी, या इनको अच्छा लगता था एनीवे। बट आने के बाद भी जो सपोर्ट इन्होंने मुझे दिया जब मैं JRH आई, तो ऑफिशियली तो मैं कहूँगी कि हम दोनों का वर्क काफ़ी अलग है, बट एक होता है ना कि जो आपको फेमिलियर बनाता है उस एटमॉस्फेयर से, उस इंस्टीट्यूट से। तो शी वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस मी विद एवरी पर्सन हियर। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और इनके दोनों बेटे, वो पहले भी हम मिलते रहे हैं, एंड दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेल मैनर्ड, आई शुड से। बहुत अच्छे से बड़ा किया है इसने उनको। और डॉक्टर महेंद्र, उन्होंने हमको बहुत फिज़िकल एक्सरसाइज सिखाई है, बैक पेन हो, इवन जयपुर में कभी विजिट करने आए और कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ मेरे घर पे खड़े खड़े भी उन्होंने मुझे एक्सरसाइज सिखाई हैं। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। अनुराधा सिस्टर के साथ तो मैंने वार्ड 15-16 में इंचार्ज में भी काम किया हुआ है, और बाद में इन ऑफिस में भी आने के बाद काम किया है। तो अनुराधा तो सिंसियर, पोलाइट, हेल्पिंग नेचर, काइंडनेस, और हार्ड वर्कर भी है और सिंसियर भी है। उसका जो भी काम होता है वो कंप्लीट और अच्छा से कंप्लीट कर देती है। सविता मैम के बारे में तो क्या बताएं, सब जानते हैं। मैं भी उनके साथ काम कर चुकी हूँ। हर पेशेंट के बारे में उनको डिटेल पता रहता था। इवन उनका वार्ड में भी काम करने का जो तरीका था एकदम परफेक्ट रहता था। कौन सा पेशेंट कहाँ है, किधर है, क्या प्रॉब्लम है, क्या उसको चल रहा है, नाम से भी कभी कभी पूरा डिटेल बता देती थी। और उनकी एक अच्छी ये है कि उनको एक नज़र से पता चलता है कि कौन कैसा है। अभी 2 बार मुझे ही एक साल में 2 बार एक्सपीरियंस हो चुका है। मुझे देखते ही उन्होंने पता, मैं तो ऐसे ही आई थी ड्यूटी पे, पर मुझे देख के ही बोला कि सिस्टर आपको कुछ तो हो रहा है। तो मैंने बोला हाँ मैम मुझे हो रहा है, मुझे कैसा तो लग रहा है। तो बोला पेपर निकाल के आते थे। नहीं बोले पेपर वगैरह नहीं, आप बैठ जाओ, पहले मैं आपको चेक कर लेती। तो उन्होंने BP वगैरह चेक किया,
तो उनको पता चला तो उन्होंने इमीडिएट सब इन्वेस्टिगेशन किए। थैंक यू मैम, थैंक यू। और उनकी एक खास बात है कि वो अच्छा खाना बनाती है और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आती है, जो दिवाली में सब लोगों ने खा चुके होंगे उनके हाथों से ऑलमोस्ट। तो वो हम सब मिस करेंगे, दोनों भी बहुत हार्ड वर्क करें, हम दोनों को भी मिस करेंगे। आपका रिटायरमेंट लाइन हेल्दी वेल्दी और अच्छे से जाइए, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नेफ्रो ओपीडी only. So I worked with madam almost 2 years, 1.5 year in nephro posting with medical OPD. So लिटरली मैडम ने मुझे नर्वस था, DNP करके आया था, मैडम ने लिटरली अपने विंग्स में मुझे रखा, जैसे चिड़िया कैसे रखती है अपने विंग्स में, दोपहर का खाना खाना, लाना, पूछना, टाइम पे जाओ, कैरियर भी थोड़ा गाइड किए, हाउ यू अप्रोचिंग, हाउ टू सी द पेशेंट, बहुत कुछ सीखा मेडिकल ओपीडी में भी, नेफ्रो ओपीडी में। और लास्ट 3 डेज से तो मैडम से मैं यही कह रहा हूँ कि मैडम बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, मत जाइए मैडम, कुछ तो करिए। अपना नंबर आज भी मैडम से मैंने बात किया कि अपना नंबर दीजिए मैडम, मैं फ़ोन करूँगा, प्लीज़ कट नहीं करना। सो थैंक यू मैडम, प्लीज़ कट तो नहीं करेंगे बट न्यू नंबर ज़रूर दीजिए। और दूसरा ये है कि मैडम बहुत से लास्ट 10 डेज से इतने पेशेंट्स आपके बारे में पूछ रहे हैं कि वाकई, जैसे किसी ने कहा कि क्या वाकई मैडम जा रही है सविता सिस्टर, और आपके काफ़ी पेशेंट्स मुझसे ही पूछ रहे हैं कि मैडम का प्लीज़ जाने वाला नंबर दे देना हमें, प्लीज़ हम कब तक कहाँ जा रही है ये भी बताइए, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता देना, बिकॉज दे विल कम एंड आस्क मी वेर यू आर गोइंग एंड योर न्यू नंबर टू आई शुड फॉरवर्ड टू योर पेशेंट। अनुराधा सिस्टर आई थिंक, या अनुराधा सिस्टर के साथ भी मैंने 1.5 साल 1 साल गैस्ट्रो ओपीडी में, गैस्ट्रो वार्ड में काम किया है। आई थिंक 2017 इजंट इट। सो इट वाज वेरी, जैसे काफ़ी ने कहा कि लवली स्माइलिंग फेसेस, आई डोंट थिंक सो एनी, कभी उनको मैंने वार्ड में गुस्से में भी देखा हूँ, दैट टू अल्कोहलिक पेशेंट जब विड्रॉल में भी जाते थे। सो मैडम का तो बाय गॉड कैसा रवैया ऐसा था कि एकदम शांत स्वभाव, एंड रियली वेरी ग्रेट मैडम, यू आई हैव सीन यू वर्किंग इन गैस्ट्रो, सो आई इंस्पायर्ड एंड two good qualities I've seen, a smiling face and very kind words she used to carry at that time on her face. So that was your strength, madam. Thank you so much. Okay, so thank you. शुभेच्छा. आज आपण इथे सगळे जमलोत, अनुराधा सिस्टर आणि डॉक्टर सविता मॅडम यांच्या रिटायरमेंट समारंभात. ॲक्च्युली हा समारंभ आपल्याला हवासा पण वाटतो आणि नकोसाही वाटतो. सिस्टर रिटायर होत आहेत, त्यांच्या म्हणजे जॉईनिंगपासून आपल्याला माहीत असलेल्या दिवशी ती त्यांच्यासाठी खूप चांगला दिवस आहे हा. सविता मॅडम जात आहेत तर खूप वाईट वाटतंय. सविता मॅडम म्हणजे माझ्या आईला ट्रीटमेंट करतात आणि माझ्या आईला एक दिवस असं होत होतं की चालायलाच होत नव्हतं. मी ओपीडीत घेऊन आली आणि मॅडमना दाखवलं. थोड्या वेळात मॅडम म्हणाले की ह्यांना ॲडमिट करायला लागेल. आईला ॲडमिट केलं, इंजेक्शन वगैरे दिले. मला मध्ये माझ्याकडे 54,000 फोटो आहेत आणि काल असंच म्हणजे हँग होण्याच्या ह्याच्यामध्ये आलेला आहे मोबाईल. तर मी असे खूप पाठी जाऊन फोटो बघत होती, व्हिडिओ बघत होती. सिस्टरांचे मला 2 गाणे म्हणजे व्हिडिओ म्हणजे सापडले, तर मी सिस्टरना काल ते फॉरवर्ड केले आणि खूप म्हणजे मेट्रो ऑफिसमध्ये कधी त्यांना ओरडताना पाहिलेलं नाही आहे. छान शांत आहेत त्या. तुमची कमी खूप जाणवेल सिस्टर. खूप तुम्हाला शुभेच्छा दोघींना आणि थँक्यू व्हेरी मच. सविता मैडम के बारे में मैं बोलना चाहूँगी. वो ऑलवेज एनर्जेटिक रहती है और हंसमुख चेहरा है उनका. और उनको कल परसों हमने पूछा था कि आपका ये सुंदरता का राज क्या है, तो उन्होंने डाइट के बारे में बोला था. मुझे तो ये नीलोफर बोली कि मैडम 4 अंडा खाती है, तो ब्रेकफास्ट में. तो मैं बोली 4 अंडा तो नहीं खाया जाएगा. हाँ, तो मैं बोली कि 4, उनको पूछी, मैं खड़ा रही थी उस दिन. तो मैडम बोली कि नहीं, मैं 2 अंडा खाती ब्रेकफास्ट में और 1 गिलास दूध पीती. बोली अच्छा. मैडम सुबह सुबह उठ के एलोवेरा जेल लगाती है. बोला जाए, उन्होंने वार्ड 15-16 में काम किया था और ज़्यादा टाइम उन्होंने ओटी में काम किया है. और एन ऑफिस में 3 साल से हमारे साथ में काम करती थी. बहुत ही डेडिकेटेडली उन्होंने वर्क किया है और मेरे को तो बहुत
मीन्स एक मेरा अच्छा हैंड अभी रिटायर हो रहा है, बाकी तो जो 2 जन हैं वो तो अभी अभी आए हैं, तो मुझे तो उनकी सभी बहुत महसूस करेगी। और उनकी खास फ्रेंड है शोभा। तो मैं ये एकदम अपोजिट व्यक्तिमत्व है। तो ये दोनों के साथ में एकदम तो मैं बोली शोभा सिस्टर को अभी तुम्हारी किसी के भी रिटायरमेंट में ज़्यादा रुकती नहीं है, लेकिन आज वो बैठी है अपने सहेली को विदाई देने के लिए, आज पूरी बैठी है। इस तरह से दोनों हमारे उत्सव मूर्ति को रिटायरमेंट हेल्दी वेल्दी की अच्छे जाओ, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। थैंक यू। जगजीवन राम हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, तब से अभी तक यही हॉस्पिटल में ही काम किया है और ज़्यादातर ऑपरेशन थिएटर में 16 years as staff nurse and after that I became in charge and for few years I was outside the OT and again I came back to operation theatre in 2017. मेरे सर्विस के 22 years ऑपरेशन थिएटर में ही बिताया गया है और उसके बाद एन ऑफिस में लास्ट लोग मिले हैं, साथ में काम किए, सब बहुत कॉपरेशन से काम किया है और सब लोग इकट्ठा हुए हैं ये फंक्शन में, इसलिए सभी लोगों को थैंक्स कहती हूँ। और सब लोग अच्छा डेडिकेशन से काम करिए और अपना हॉस्पिटल को शोभा दे दीजिए। 1992 अगस्त 1 मैंने मॉर्निंग ड्यूटी किया और उसने इवनिंग ड्यूटी किया। हम सेम बैच के हैं और वही बैच में हम दोनों ही इधर है। पहले 4 जन थे, अभी खाली 2 ही जन हैं, वो दोनों बाकी दोनों तो पहले से ही यहाँ से चले गए हैं। और इतने साल काम किया हम, इतना 33 years नियरली 30 years 3 months ओनली लेस देन 33 years और इतना साल काम किया तो मुझे अच्छा लगा, कैसा टाइम गया, जल्दी गया, ऐसा ही लग रहा है मेरे को। और सबको यहाँ आने के लिए और ये फंक्शन में अटेंड किया उसके लिए सबके लिए थैंक यू कहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये जेआरएच परिवार बड़ा अच्छा कंसेप्ट है जो शायद हफीज़ा मैम ने ये शब्द निकाला, जेआरएच फैमिली, जेआरएच परिवार। और आज हम देख रहे हैं इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं। अभी मेरी सर्विस को 33 साल हुए। दिसंबर 1991 मैंने रेलवे ज्वाइन की आफ्टर पासिंग माई MD। और बाई लुक मेरे पिताजी ने मतलब ज़बरदस्ती मुझे भेजा रेलवे में, बिकॉज ही वॉज रेलवे ऑफिसर, ही वांटेड मी टू वर्क इन रेलवे। लेकिन बचपन से जब हम गुड्डा गुड्डियों का खेल खेलते तब से मुझे डॉक्टर बनने की बहुत इच्छा थी। तो जब गुड्डा गुड्डियों का खेल खेलते थे, कोई भी बच्चे जब बचपन में खेलते थे, एक तो मुझे माँ बनना था, आई यूज्ड टू बी मदर, और आई यूज्ड टू बी टीचर। जब स्कूल खेल रहे या डॉक्टर खेल रहे थे, आई यूज्ड टू बी डॉक्टर। सो ऑल 3 रोल्स, एज अ मदर, एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, ये तीनों करने का सौभाग्य मुझे मिला। तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत बहुत खुशनसीब मानती हूँ। टीचरशिप का जो है वो तो अंबेडकर हॉस्पिटल में शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ जेआरएच में आके मेरा जो टीचर का करियर है बहुत फ्लरिश हुआ है। जो डॉक्टर है वो तो जो हमारे मेडिकल कॉलेज में उन ज़माने में क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, और वो तजुर्बा मुझे इगतपुरी में बहुत काम आया, क्योंकि वो 60 बेड का हॉस्पिटल था, ECG मशीन और बेसिक इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं होता था। और वो ECG मशीन के इस पे मैंने एक पेशेंट को वहाँ स्ट्रेप्टोकाइनेस भी लगाया, इंटीरियर वॉल MI स्ट्रेप्टोकाइनेस भी लगाया। तो दैट बिकॉज ऑफ दैट क्लिनिकल एक्सपीरियंस। इगतपुरी के बाद फिर मेरा बाइकला में पोस्टिंग हुआ, जहाँ आई हैड अपॉर्चुनिटी टू वर्क, गॉट एक्सपोजर टू नेफ्रोलॉजी। डॉक्टर बहादुर एक बड़े जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने रेलवे 2 साल मैंने एकदम हाउस सर्जन जैसे काम किया। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तब, छोटा वाला 5-6 साल का, बड़ा वाला 8-10 साल का, और मैं सुबह 8 बजे से रात के 8-9-10 बजे तक हॉस्पिटल में पड़ी रहती थी।
बिल्कुल घर पीछे था, लेकिन मैं कंटिन्यूसली हॉस्पिटल रहती थी। एक चीज़ मैंने हमेशा अपने आप को समझाया कि हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क इज़ गोइंग टू टेक यू वेयर यू आर टुडे। और ये मैंने कभी भी कहीं भी मैंने इस चीज़ के लिए मैंने कभी अपने आप को या किसी एडमिनिस्ट्रेटर को इस चीज़ के लिए कभी मैंने ना नहीं बोला कि ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूँगी, ये मैंने कभी नहीं बोला। हमेशा मैंने अपने आप को यही समझाया कि हार्ड वर्क से ही तुम आगे जाओगे। भले मेरे पास बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है, बट हार्ड वर्क इज़ द थिंग विच हैव टेकन मी अहेड। दूसरा, फिर जब बैकला हॉस्पिटल में मेरे पोस्टिंग हुई, नेफ्रोलॉजी में काफ़ी मेरा नाम होने लगा। कुछ लोगों को तकलीफ हुई, कुछ मेरे अगेंस्ट बहुत बड़ी साजिश हुई। पूनम जैसी फ्रेंड मिली, दूसरे 2 लोगों ने वहाँ मुझे अपनी बेटी माना कि 2 फैमिलीज़। मैं जयपुर में किसी को भी नहीं जानती थी, अकेले मैं वहाँ जयपुर में रही, मेरी पूरी फैमिली यहाँ रही। मेरा बेटा बड़ा वाला 12th में था। मतलब ऐसे कठिन पीरियड में यहाँ तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला घर के फैमिली की तरफ से, लेकिन वहाँ मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला कि मैं जयपुर इज़ लाइक मेरा सेकंड मायका। हमेशा मैं अपने मायका समझती हूँ। वहाँ अभी भी लोग मेरा इंतज़ार करते हैं, हर 8-10 दिन के बाद फ़ोन आता है, बिटिया कब आ रही है, कि उस तरह से मेरे रिलेशन वहाँ बने। और दूसरा मुझे गिफ्ट मिला, ये जो मेरे साथ हुआ कि मुझे जगजीवन राम में पोस्टिंग मिला। और मैं हमेशा अपने आप को इसलिए खुशनसीब मानती हूँ। मेरे करियर का 33 ईयर्स के करियर में से 12.5 साल मेरे जगजीवन राम हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा टाइम मैंने यहाँ बिताया है। यहाँ मुझे हार्डली 2-3 लोग जानते थे। एक तो मिस्टर मालविया जो डायलिसिस टेक्नीशियन थे, क्योंकि वहाँ से हमारा बात होती थी, पेशेंट की लेन देन होती थी, वो मुझे जानते थे। फिर यहाँ आने के बाद पता चला सविता सिस्टर इज ऑल्सो, शी इज़ माई फैन, जब मेरा ICU में पोस्टिंग हुआ तब। और डॉक्टर्स काफ़ी सारे जानते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद बिकॉज मेनी डॉक्टर्स वेर नोइंग मी, दे न्यू मी माई गुड रेपुटेशन, फॉर्चुनेटली नॉट बैड रेपुटेशन। तो इसलिए मुझे यहाँ पाव जमाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एंड मैंने हमेशा हार्ड वर्क किया है, और ये मेरे बाकी लोगों के लिए भी सीख है कि इसको आप जारी रखें। कुछ 2-3 साल पहले से जब मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि आफ्टर 62 ही इज़ नॉट गोइंग टू कंटिन्यू, दैट टाइम वी बोथ सैट टुगेदर, वी डिसाइडेड कि येस, फॉर मी ऑल्सो इट इज़ द राइट टाइम टू लीव and we'll go to a small place and we'll start serving people where the medical services are not available. So we are zeroing down गोवा। जैसे लोगों ने बोला, मुझे फिलहाल अभी भी मुझे गोवा पसंद है, दैट्स प्लान बी। लेकिन एक छोटे कोंकण के एक छोटे गांव में हम बसने का सोच रहे हैं और वहाँ जाके लोगों की सेवा करेंगे, ये हमने सोचा है। ऐसे नहीं कि मैं मेडिकल फील्ड से कभी बाहर नहीं जा सकती हूँ। डॉक्टर मेरे खून में डॉक्टर का रग में डॉक्टर का खून दौड़ रहा है, तो आई कैनॉट बी अवे फ्रॉम दैट रोल। तो मैं करूँगी, अभी भी कुछ छोटा मोटा करूँगी, बट इट इज़ आफ्टर मे बी इन 2026 दैट विल बी फाइनलाइज कि मैं छोटे गांव में जाके हम लोगों ने सेवा करनी है। और हम छोटे छोटे जगह जाके कैंप करेंगे। हमने मतलब इतना तो हमने डिसाइड किया है कि मुंबई में नहीं रहेंगे। मुंबई इज़ नॉट गुड फॉर टू रिमेन हेल्दी। बहुत सारे मरीज जो हमारे रिटायर होने के बाद गांव में जाते हैं, दे फील कि दे आर बेटर ऑफ इन स्मॉल प्लेसेस अनलेस दे हैव वेरी बिग कॉम्प्लिकेटेड इलनेसेस, एंड दैट्स ट्रू। नॉइज पोल्यूशन इतना ज़्यादा बात नहीं होती है। समडे आई एम थिंकिंग ऑफ पुटिंग लाइट ऑन दैट एंड deliver a lecture or do a work on that about light pollution, जिससे लोगों की नींद खराब होती है। एंड वी नो दैट विथ लैक ऑफ स्लीप बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई है। और ये इतने सालों में हमेशा मेरा फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं रहा। मैंने हमेशा लोगों को फ़ोन पे बात की कि कोई तो भी बोल रहा था मैडम फ़ोन नंबर देना, फ़ोन बंद नहीं करना, कभी नहीं करती हूँ अनलेस आई एम बिजी इन सम मीटिंग और टॉकिंग विद समबडी, सम इंपॉर्टेंट पर्सन, अदरवाइज आई कॉल बैक। ये मैंने कभी नहीं किया। और ये इतना हुआ है, अभी ARS लिया या जब से मेरा फ़ोन हैक हुआ था, वो भी एक मज़ेदार किस्सा हुआ कि मेरा फ़ोन हैक है, तब तक रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मुझे कितनी ही बार फ़ोन आए, चाहे वो रेसिडेंट का हो, चाहे कोई पेशेंट के हो। आई नेवर कट ऑफ देयर फोन। तो मेरी नींद हमेशा खराब रही, मेरी नींद हमेशा टूटी रही। मैं बहुत ही मुश्किल से 5-6 घंटे सो पाई हूँ पिछले इतने सालों में, पिछले 10-12 सालों में। यू आर नॉट, आप सोच रहे हैं कि मैं क्यों कर रही हूँ ये। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि कंटिन्यूस आई वॉज ऑन फोन। तो मैंने कभी किसी को ना नहीं बोला कि मैं छुट्टी पे हूँ, मैं नहीं देखूंगी अनलेस देयर इज रिसेप्शन इज़ नॉट देयर। तो इस तरह से मेरी जो हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा था, मेरे घर के लोग जानते थे। तो दैट्स वाई वन फाइन डे वी स्टार्ट टुगेदर एंड देन वी डिसाइडेड येस इट्स द टाइम। 1 साल पहले हमने डिसाइड किया कि येस आई विल ऑल्सो टेक VRS। और पिछले 1 साल से मैं यहाँ बैठ के विजुलाइज करती थी कि मेरा रिटायरमेंट फंक्शन कैसे होगा।
लिटरली मैंने विजुलाइज किया कि मुझे क्या क्या बोलना है। पिछले 1 साल से मैं अपनी स्पीच की तैयारी करती हूँ। मतलब मैं अपने आप को तैयार कर लिया कि मुझे इतना टाइम नहीं लगता तुझे स्पीच इट इज नॉट हो गया क्या सिस्टर, मैं वही बोल रहा था क्योंकि नहीं दिखते नहीं ऐसे, मतलब दे आर वेल मेंटेन्ड देयर हेल्थ, so still they are in active life, so they can give more service than this one. I want to say this one, it is inevitable in service. You know that we are all in service. For each and every one it is inevitable, one or the other day you have to get retirement. That means superannuation or voluntary retirement, whatever it may be, you have to leave and go somewhere else. That doesn't mean that one it is the end of the chapter. So then another chapter is there, so that's the next innings they say. Even many people say that even there are studies also there. Those who retired early age, they live longer. Those who are retired later life, they will not survive longer. I think we all know about this, all this thing. So probably they have taken their own decision, of course, Savita madam. So get it retirement early, premature retirement, whatever you want to say, voluntary. So because as we herself told that now because of it was affecting her earlier. So I wish her happy and peaceful life, at least after this retirement, and then use more service to the needy. She told that she will go and settle somewhere else in small places. Wherever you go, service is definitely demanded, everywhere it is required. So also you will do your best thing there also. So what our interaction between me and Savita madam, I think I'm only 10 months old. I came here when I met her first time. When I saw her, she was, I think, the first day when I came unofficially, on 24th of June, there was an inspection with PCMD madam, and then many people were there, even MD, and then Savita madam also. She was started so smiling, because she already told that there are always smile on her face. And she also greeted me. I didn't know that whether she know about me or not, but probably they knew that. रिटायरमेंट उन सभी का होना है जिन्होंने कि जॉब ज्वाइन किया। ये एक सत्य है जो हम सभी को मालूम है। आज दोनों सम्मान मूर्ति जो कि हमें हमारे हॉस्पिटल के वर्किंग प्लेस को छोड़कर जाने वाले हैं, तो आज के दिन हम इनके साथ बिताए हुए पल को याद करते हैं और इनके अंदर मौजूद जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स हैं, जो अच्छे तरीके से काम करने के तरीके हैं, उनको अपने आप में समाहित करने की कोशिश करते हैं कि हम इनके तरह ही जो अच्छे काम हैं वो कर पाएँ। अनुराधा सिस्टर, इनके साथ मुझे ऑपरेशन थिएटर में काम करने का मौका लगा। बहुत ही कर्मठ काम करने वाली हैं, ये बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन बनाती हैं। कहने का मतलब है इनका लिखा हुआ राइटिंग वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत करीने से कोई जस्टिफिकेशन लिखना रहता है तो लिखती है। और ऑपरेशन थिएटर में मैं बोलता था एएनओ नहीं बनना है क्या, और हम हमेशा चाहते थे कि वो एएनओ बने। इन्होंने अपने परिवार के लिए एएनओ नहीं बना। ये एक बहुत ऊंचा पोस्ट माना जाता है और इन्होंने अपने परिवार के लिए ये सेक्रीफाइस किया है, ये मैं समझ रहा हूँ। इनको यहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ता है और इन्होंने अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए ये सेक्रीफाइस किया। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में इनका परिवार इस सेक्रीफाइस को बहुत तहे दिल से हमेशा याद रखे। छोटी चीज़ नहीं। सविता ने जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, उन्होंने अपना बताया भी, हम सभी को आज साझा किया कि क्यों वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया उन्होंने। तो फिजिशियन, एज अ फिजिशियन उन्होंने काम किया और बहुत ही अच्छे से काम किया। जहाँ भी काम किया वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही हैं और जैसे सबने बताया, शी इज़ वेरी वेरी एनर्जेटिक। सुबह आप आते हो, आप कितने भी बजे आप आओगे, जल्दी आने का सोचोगे कि आप जीआरएच में एंटर कर रहे हो तो डॉक्टर सविता की गाड़ी आपको पहले ज़रूर मिलेगी। तो शी कम्स वेरी अर्ली, बहुत जल्दी आके वो अपना राउंड वगैरह भी बड़े एनर्जेटिक वे से लेती हैं। सुबह उठ के वो 10 से 12 किलोमीटर भागती हैं। मतलब हमें बहुत कुछ उनसे, मैं बहुत कोशिश किया सीखने का, पर डॉक्टर मेहता ने सीखने नहीं दिया मुझे बहुत इम्यूलेट करने का कोशिश किया मैंने,
पर वो नहीं कर पाई मैं। शी इज़ वेरी वेरी रेगुलर, और बल्कि उनका भी डॉक्टर मेहता ने इलाज किया, डॉक्टर नटराज ने और डॉक्टर मेहता ने, बट शी उसको भी उन्होंने पार कर लिया और अपनी जो मैराथन और हाफ मैराथन जो वो भागती हैं उसको चालू रखा। तो शी इज़ दैट वे ऑल्सो, शी इज़ एन इंस्पिरेशन, शी शुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल। एनर्जी हो गया, एनकरेजिंग, जो भी स्टूडेंट्स आ रहे थे, हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, नए CMP आते हैं, कोई नया डॉक्टर आता है, नया ADMO आता है, उसको पूरा बहुत एनकरेज और सपोर्ट देती हैं, मैंने हमेशा देखा है। शी विल बी स्पेंडिंग टाइम विद देम, और खाना उनके लिए लाना और हमारे लिए भी हमेशा लाना। पूरन पोली तो हमें हमेशा याद रहेगी, होली और दिवाली पर उनका बनाना, और शी दैट इज़ मल्टी टैलेंटेड, शी इज़ एनकरेज हमेशा किया सबको। फिर एम्पैथेटिक, जो सविता बोल रही थी सिस्टर, कि आप देख के बोल देते हो कि नहीं, अश्विनी सिस्टर ने बोला कि आप देख के बोल देते हो कि कुछ ना कुछ तो आज ठीक नहीं है, उसको एम्पैथी कहते हैं। कि आपने बोला नहीं है फिर भी आपको मालूम है कि इनको पता चल गया आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, या उनको ये एक गुण है उसमें, तो वो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। जब आप पेशेंट के सामने, जो आपके रेगुलर पेशेंट आते रहते हैं, नेफ्रोलॉजी में उन्होंने काम किया तो नेफ्रोलॉजी में क्रोनिक पेशेंट्स रहते हैं, तो वो और एक वार्मथ मिलती है पेशेंट को। पेशेंट को आप OPD में जब हम बैठ के पेशेंट्स देखते हैं या वार्ड में आप लोग देखते हैं, आप एक भी पर्सनल क्वेश्चन अगर पेशेंट से पूछ लेंगे, पेशेंट विल थिंक कि ये डॉक्टर जो है मुझसे मतलब कितना प्यार से मेरे से बात कर रहे हैं। जैसे गायनिक OPD में कोई पेशेंट का, अभी तुम्हें थोड़ा वेट कर लो, कहाँ रहते हो आप, कौन सी ट्रेन से जाओगे, अच्छा इतना दूर रहते हो, चलो आज ही आपका कराने की कोशिश करते हैं। आप एक सेंटेंस बोलिए, वो हमेशा ये सोचेंगे देखो इन्होंने हमें इतना पर्सनलाइज करके देखा है। इसको आजकल पर्सनलाइज गिफ्ट्स होते हैं ना, ये पर्सनलाइज टॉक्स हैं कि आप किस तरह से अपने पेशेंट से बात करो। और उसमें भी डॉक्टर सविता ने बहुत ही महारत है उनको, हमेशा अपने पेशेंट से बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है उनका, बहुत पॉपुलर पेशेंट्स के बीच में रहती है, क्योंकि पेशेंट से वो एक दिल का रिश्ता बन जाता है, उस टाइप से उनका कॉन्वर्सेशन रहता है, ध्यान रखती हैं उनका। फिर आप एकेडमिक में आइए तो क्लिनिकली शी इज़ वेरी साउंड, इतने सालों का उनको एक्सपीरियंस है, तो वो हर जगह काम आता है। और उसके बाद पेशेंट अवेयरनेस, पेशेंट्स को कुछ बताना है तो आप कल ये डे सेलिब्रेट करना है, अभी तो 365 डेज़ हैं और 720 डेज़ बने हुए हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए, तो अरे ये तो प्रिपेयर ही नहीं किया। सविता प्लीज़ आप बोल दो ना कुछ, सविता पेशेंट्स को बता दो ना, सविता ये कर दो ना। तो शी वॉज ऑलवेज रेडी टू शेयर हर थॉट्स, चाहे हम लोग फीमेल्स बैठ के कभी मेनोपॉज के बारे में बात कर रहे हो, कभी डाइट के बारे में बात कर रहे हो। इवन इफ़ शी विल गो, मैंने देखा है, पहले मैं फेसबुक पे देखती थी, अभी तो मैं एक्टिव नहीं हूँ फेसबुक पे, वो घूमने भी जाएगी तो वहाँ पर वो एक कॉलोनी में जाके लेक्चर दे देगी। बड़ौदा जाएगी इंस्पेक्शन के लिए या कोई मेडिकल बोर्ड के लिए, शी वेंट टू बड़ौदा और वहाँ पर भी लेक्चर दे दिया। तो दैट वे इट्स हर पैशन की मैं, मेरे को जो मालूम है वो मैं बाकी लोगों को भी बताऊँ, वो भी एक बहुत आज के टाइम पे बहुत ही बड़ी चीज़ है जो वो करती हैं। और हम तो अभी शी वॉज सो मल्टी प्रॉन्ग्ड एक्टिविटीज़ शी वॉज डूइंग इन JRH, कि अभी हम 3 तारीख के बाद से हमको पता चलेगा धीरे धीरे ये वाले काम के लिए, अरे आज यहाँ पर सविता का रोल था, डॉक्टर सविता इज़ नॉट देयर। तो जैसे डॉक्टर अतुल ने बताया, हर अभी 2-3 एग्जाम्पल्स तो मेरे MD बनने के बाद ही, पहले से तो हम लोग कलीग्स हैं, वी आर ऑफ सेम एज, मेरे ख्याल से हमारी राशि भी सेम ही है। तो लेकिन अभी जैसे NABH का काम था, कॉन्फ्रेंस का काम था, हर काम में मतलब ओनरशिप लेके करना कि हाँ ये मेरा काम है, ये JRH है, इसलिए ये काम मुझे करना है, और उसमें कोई भी कमी नहीं रहती थी। फिर जल्दी आना है, उत्साहित होके करना है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो आके रोना नहीं है कि ये मेरे को ये नहीं हो रहा, कैसे करें, क्या करें, उसके साथ सोल्यूशन लेके आना है, क्योंकि बहुत ही बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि हमको इतनी सारी चीज़ें हैं डॉक्टर सविता से सीखने वाली कि वो मेरा सब बताना भी शायद ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर एक बात तो ज़रूर है कि हम उनको बहुत मिस करने वाले हैं। NABH के लिए वो कितना, शी इज़ क्वालिटी मैनेजर, अभी मेरे को रिप्लेसमेंट ही नहीं मिल पाएगा कि क्वालिटी मैनेजर किसको बनाऊँ। तो मेडिकल चेकअप, डॉक्टर्स का मेडिकल चेकअप किसी और को याद रहे या ना रहे, डॉक्टर सविता को कब रखना है, बस वो जनवरी में से उनका शुरू हो जाता है, कब रखें मेडिकल चेकअप।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम हमेशा याद रखेंगे उनको। और उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो भी बहुत अच्छा है। वो नीडी लोगों का जाके उनको सेवाएं देना अपना एक तरह से समाज को रिटर्न बैक है, जो कि हम सभी चाहते हैं कि हम करें, और उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो जब VRS का उसने एक बॉम्ब था मेरे ऊपर डाला था, जब लेटर देखा उसमें 3 फरवरी को, 2 फरवरी को या 3 फरवरी को, तो ये क्या हो रहा है। आई वॉज रियली स्कैर्ड कि मैंने तो नहीं इतना डरा दिया उसको कि वो VRS ले रही, फिर बुलाया तो देन शी टोल्ड मी नहीं मैंने पहले से डिसाइड किया था। और उसके बाद से मैंने उसे नहीं बोला कि आप वापस लो, बिकॉज इट वॉज हर डिसीजन एंड एक्चुअली आई वॉज एनवीइंग हर। मैंने एक दो बार उसको बोला भी कि आपने तो ले लिया ये डिसीजन, एंड और वो डिसीजन लेने के बाद शी वॉज वेरी मच रिलैक्स। I noticed it that she was very much relaxed, and हम सम्मान करते हैं उनके डिसीजन का। हमें होगी प्रॉब्लम, लेकिन whatever decision she has taken, that really glad, we are really proud of that way she has taken, और इस काम के लिए उन्होंने लिया है। और मैं उनको डॉक्टर महेंद्र जी जैसे तो उन्होंने खुद ही इतना तारीफ किया, आज होना चाहिए था, कहाँ पत्नी के मुँह से इतनी सारी तारीफ सुनने को मिलती है। पर वो सच में जो उन्होंने बोला, ये जेम ऑफ पर्सनैलिटी, बहुत ही अच्छे हैं डॉक्टर महेंद्र, दोनों बच्चे भी। और